of your listening, and you have invited Advocate Ashish Jaspal sir. So all my very good friends from different, he's from USA, and sir, we have prepared two things for you. First is our mandate and what we are doing here for promotion of organic farming and natural farming in the country. Sir, this is our organization, and in fact, I was Deputy Commissioner in Ministry, Krishi Bhavan there. And I Regional came Center of Organic and Natural Farming, Yes. Nagpur. Nagpur. So this is what we are So doing. your organization, Government of India, Yes, sir. government company or government Central share, central government Yes. या PSU क्या है? It's purely central government. It's an apex organization of Government of India under INM division. Agriculture division. Yeah. It's a subordinate office of ministry. हमने सर 1989 से जर्नी शुरू की. It was Regional Biofertilizer Development Center earlier. Now in 2004 it is renamed as Regional Center of Organic Farming. And again it was renamed in 2000 March 22 as the Regional Center of Organic and Natural Farming due to inclusion of this natural farming in this. Because Prime Minister PMO is interested to promote natural farming in the country. Governor of Gujarat also focusing it. So now we are having around 9 centers in the country, but now it is totally 5 because some of the centers were merged with, because in Jabalpur center there was no building, and similarly in Gujarat also and other places like Bihar. So your jurisdiction is Maharashtra or any other state? Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat, Dadar Nagar Haveli. These are the jurisdiction states, sir. Gujarat, Madhya Pradesh. ये इतने लोगों के इतने स्टेट का ऑफिस है? Yes, sir. Sir, this is our functions. So we are capacity building. We have some training programs, more than 55 programs we conduct annually. And this is nodal quality control of the laboratory. We test the organic inputs and biofertilizer as per FCO 1985. This is the reference laboratory. On top we have one laboratory also, sir. And this is the Journal Council for the, sir, there are 2 kinds of certification systems. To create awareness and publicity by print and electronic media to promote organic and natural farming. And these are other functions like knowledge repository of various organic and biofertilizers data. And we actually access the market demand, supply and production. And sir, this is actually the office that promote the package of practices and best practices and success stories on organic and natural farming. Develop manure and the package manage, keep on updating natural database. So we have entire information, and we also coordinating with some of the agencies like FSI or this QCI or this other agencies. जो स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है वो डाटा पे आपके पास रिफ्लेक्ट होता है? We take the data from state government. Okay. So these are the latest status of farmers. We have around in Gujarat. In left side you see that this is the area of Gujarat, 2,85,200 hectare, and 8,50,000 farmers are there. Similarly in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, please next. Maharashtra is the status of this. So in percentage, कौन सा स्टेट ज्यादा है? Right now, sir, this in natural farming, Gujarat and Andhra are the leading because they are like Chhattisgarh is 0 in natural farming. They are promoting only organic farming. For organic farming, Madhya Pradesh is leading. So Maharashtra in second position. Organic farming. Yes, sir. So natural farming और organic farming को हमें आप difference क्या करते हैं? Yeah. It's very interesting because in natural farming we do not add anything from outside. Like in biofertilizer, it is not possible to apply in natural farming, but we can apply organic inputs and biofertilizers in organic farming, sir. And natural farming is nothing just like in forest. We should not disturb anything, whatever is there. बस बोध और बात खत्म. बस. बाकी इसमें आप ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं. Yes, sir. Sir, this is the situation of Telangana and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is one organization known as RYSS. We have framed that scheme also. अभी आपको दे देंगे. Sir, these are the HRD programs. Like Gadkari have also visited our office last year. 21 training and 2 days training program. And this natural farmers, प्राकृतिक खेती का एक बड़ा सम्मेलन था. 1000 farmers के अराउंड 500 to 1000 farmers are there. तो इस तरह का हमने सर ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी किए और ऑफलाइन प्रोग्राम भी करते हैं. अराउंड दीज आर द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग, लाइक 1 day farmers training demonstration,
and natural farming on around 50 participants are required scheme wise. Then 2 days training program for extension officers of the state government and other FPOs, FPCs, and sir 21 days program residential course. Where here? Yes, sir. In our jurisdiction, we conduct the program not only in Maharashtra but in other states also. So you have accommodation facility? Sir, we conduct with association with this like PDKV Akola or this university campus. We take that facility from like in the Banamati se bhi hum karte hain. So these are some glimpses of the training programs of last year. I think this is the previous year. Yes. Some of the the Rajya Sabha member Mr. Gandhi visited from Chhattisgarh. So आप कोर्सेज चलाते हैं यहाँ पर पूरा? यस सर, ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग भी होती है। कितने लोग आते हैं साल भर में? मोर देन सर मान के चलिए 8.5 स्टेट को हम कवर करते हैं। महाराष्ट्र कितने आते हैं? महाराष्ट्र के तो मैक्सिमम आते हैं, जैसे कि नागपुर में। मध्य प्रदेश का तो यहाँ मर्ज हो गया तो सब लोग यहीं आते हैं। एक्चुअली सर माई रिक्वेस्ट वाज दैट कि अगर ये सारे एक स्टेट में एक होना चाहिए, तो हमारे पास वी हैव ओनली 4 साइट। तो आपको क्रेडिट सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक स्टेट का एक होना चाहिए। दोबारा आए तो यहाँ होगा। These are regional councils, consultation, we consult all the stakeholders यानी फार्मर्स। जो हमने अभी एक प्रोग्राम किया था सर, उसमें 5 पद्मश्री थे पूरे इंडिया के, उसमें आपके यहाँ बनामती में ही किया था। तो वो सब इस तरह के नेशनल कंसल्टेशन भी हम करते हैं, जिसमें अच्छे फार्मर्स, पद्मश्री फार्मर्स को भी बुलाते हैं और वो उनके क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, क्या उनको चाहिए, उस सब पे कंसल्टेशन होकर हम मिनिस्ट्री को फिर हम उसका भेजते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ये नेशनल सेमिनार किया था सर इसमें, एक आपके ये जस्ट रिसेंटली इसमें हाई कोर्ट जज भी आए थे यहाँ से, तेलंगाना की ज्वाइंट सेक्रेटरी है हमारे, उन्होंने भी विजिट किया था। ये गवर्नर साहब के साथ में बुक रिलीज हुई थी हमारी सर, आपके यहाँ के सब वाइस चांसलर्स हैं और ये सब गडकरी साहब भी हैं। और ये रीजनल कंसल्टेशन एक हमने वहाँ पूना में किया था, उसमें हमारी योगिता राणा अगर ये संपर्क विकसित भारत संकल्प यात्रा की चेयरमैन वहाँ की। ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने सर यहाँ पर नेक्स्ट ये बुक्स हैं हमारी रिलीज, FAQs हैं सर। वी टेस्ट क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक बायो फर्टिलाइजर 81, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 118 एंड नॉन ईटेबल GI केक्स एज पर FCA 1985 लास्ट ईयर। Total 201 samples were tested by the center. These are the instruments on our lab. So we test the all. Sir, these are the 2 system of organic certification. PGS India is our main leading program, participatory guarantee system. So for India in domestic consumption, this is the program. आप जो सर्टिफिकेशन देते हो सर, वो क्या पैकिंग में देते हो या क्या देते हो? नहीं, ये लोगो लगाते हैं सर, और ये लोगो उनके प्रोडक्ट में लगता है जो उनके प्रोड्यूस होता है उसका। तो ये थर्ड पार्टी का जो है, उसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अपेडा के थ्रू होता है, ये हमारा जो सेक्रेटरीट है एनसीएफ गाजियाबाद के थ्रू होता है। वहाँ पर सर CB होती है, सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं, और यहाँ पर हमारी RCs होती है, रीजनल काउंसिल्स। इवन श्री मतलब ये है कि आपने अगर कोई चीज को सर्टिफाई किया तो डाउट करने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, ट्रेसेबिलिटी है सर, ट्रेसेबिलिटी है कि किस फार्मर के फील्ड से आया है वो अभी आपको। नेक्स्ट मैं वही सोच रहा था कि सारा पूरा माल हम लोग ऑर्गेनिक करके बेचते, लोगों को समझते नहीं, ग्राहक को भी तो कंप्यूटर अटैच्ड टू सर्टिफाई रेसिपी टेस्टिंग, और हर आदमी बोलता मेरा माल ऑर्गेनिक है, चाहे कैसा भी रहे। रेसिपी टेस्टिंग है, सर्टिफाई करने की एजेंसी। सेकंड, अगर मैंने अपना माल ऑर्गेनिक उनके बेचा, क्या पेनल्टी और क्या SOP उसकी? नहीं, उसमें सर एक बार अगर वो अभी देखो हम कहीं पे भी स्टॉल रहता है ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक हो। मैं अभी मनाली गया था लास्ट ईयर, यही समय आज का ही दिन था, आज ही गया था। वहां पर मुझे चावल खा के मैं जाके देखा पैकेट लिया तो उसको लिखा था ऑर्गेनिक। मतलब क्या है, पैकिंग के ऊपर ऑर्गेनिक लिख दिया था। वो तो मन को ट्रेसेबिलिटी आपके पास कोई ऐसा साइंस कोड है जो चेक करता है, कोई अथॉरिटी करते हैं ना? हमारे पास बैक ट्रेसेबिलिटी है सर, उसमें एक 11 डिजिट का नंबर होता है। वो नंबर अगर हमने हमारे वेबसाइट पे डालेंगे तो बैक ट्रेसेबिलिटी करके कौन से फार्मर का अच्छा कुछ नहीं है कि मोबाइल से मैं अगर आपको पूछूंगा तो वो है कि नहीं? QR कोड है सर, सारा कुछ आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, कैसे पार्टिसिपेशन है, व्हाट इज द शेयर विजन, एक्चुअली दिस इज द बाय द फार्मर्स फॉर द फार्मर्स। इट्स अ वेरी यूनिक मेथोडोलॉजी ऑफ सर्टिफिकेशन। इसमें फार्मर्स ही करते हैं फार्मर का सर, तो ग्रुप बना के करते हैं, और ये ट्रस्ट का ही मेन है। इसमें ये पोर्टल एक बहुत अच्छा PGS, ये पूरा वर्क फ्लो है सर PGS इंडिया का। इसमें रीजनल काउंसिल्स होते हैं, फिर जोनल काउंसिल, और आप ये सब टेस्टिंग की अथॉरिटी हो गई, सर्टिफाइड कोर्स हो गया, सब हो गया। आपके पास कोई स्कीम है कि अगर कोई आदमी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो उसको कोई इंसेंटिव देने का? भारत सरकार की स्कीम है ना सर, परंपरागत कृषि विकास योजना है, नेशनल अर्निंग वैल्यू चेन है,
और अभी जो आप जैसे बात कर रहे थे फैमिली फार्मर्स का भी कुछ हम लोग है उसमें। ये पूरा आज का स्टेटस बता रहे हैं सर। रीजनल काउंसिल हमारे पास 77 है एंड टोटल ग्रुप्स हैं अराउंड जो है या yes, शेतकरी गट या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या रुपये में फार्मर्स जो है ये जो है लगभग 19-20 लाख के आसपास फार्मर है हमारे पीजे इंडिया के पोर्टल में जो हमसे जुड़े हैं, सर्टिफाइड है जो कर रहे हैं पूरी कंट्री में। जब लोग एक बार ग्रुप में आते हैं उसके बाद में चेंज नहीं करते क्या? नहीं, वो तो उनका सर पूरा चलता रहता है। वो आरसी के साथ टाइप रहते हैं और अगर वो काम नहीं करते वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो फिर उनको आरसी दे कैन शिफ्ट। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट ये सब ट्रेसेबिलिटी है। इसको आप QR कोड से आप पता कर लेंगे कि कौन से फार्मर का कौन सा प्रोड्यूस है, उसका UID नंबर होता है। ये पूरा डिटेल है, पोर्टल है सर। भारत पब्लिसिटी नहीं हुई है सर, हम लोग प्रोग्राम करके हैं, बहुत पब्लिसिटी नहीं है इसकी वजह से लोगों को। आप मेरे को बताओ, स्टेट के कृषि मंत्री को ये नहीं मालूम? मैं तो सरप्राइजिंग की बात है। मैं तो सर मैं अभी आया सर यहाँ, इससे पहले मैं दिल्ली में ही था, तो हमारा तो इंटरेस्ट था एक्चुअली। मेरे आपके यहाँ पर अभी तक एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर कोई आए क्या? नितिन गडकरी सर आए हैं। नहीं, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर वो आए थे ना, क्या नाम है उनका? बोंडे साहब भी आए थे। यहीं से जाते थे सामने से। हाँ, वो रुक के जाते थे। नहीं, रुक के ऑलरेडी उनके साथ भी एक प्रोग्राम में आए हैं। लेकिन हमने तो सब बीच में इनवाइट किया था, इवन CM साहब को भी बुलाया था, पर वो नहीं आया। गडकरी साहब जरूर आए हैं 2 बार से। और ये सर हमारा एक पोर्टल है जैविक खेती का, भारत सरकार का, रासायनिक मुक्त भारत। इसमें इतना नॉलेज है सर, ई मार्केट है, कितने प्रोड्यूसर हैं, ये इस तरह के लोगो लग जाते हैं जब वो अगर नॉर्मली 3 साल के बाद, पहले 2 साल में ये देते हैं ग्रीन, फिर बाद में ये इस तरह की ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट्स की। सर एक अभी गुप्ता साहब के साथ मिलकर एक हमारा और LAC का मैं आपको डिटेल बताऊँ। इस तरह की सर ये जो होती है जैसे स्वदेशी हमारी पीजे इंडिया की ब्रांड ऐसे बनती है, इसमें लोगो लग जाता है और ये FSI का भी रहेगा, वो भी रहेगा। स्वदेशी इस तरह के सर ये प्रकृति ऑर्गेनिक्स जो हमारी वो संस्थाएं हैं जो कर रही हैं इस तरह से पूरे कंट्री में। अभी श्री रविशंकर का भी है, जो पागल है लेने के लिए। ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। श्री रविशंकर आपके पास लेते हैं? हाँ, वो आरसी, वो हमारे आरसी हैं। इवन बाबा जी भी जो है ना, रामदेव बाबा भी हम लोग से आरसी करके जुड़े हैं, उनका भी आप ये जो है। और इस तरह के सर हमारा लोग आते हैं। नहीं, आपका तो स्वागत है। आपका तो बिना आपके तो मैं तो बहुत ज्यादा इसको काऊ डंग के बिना, काऊ यूरिन इज वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर ऑफ द वर्ल्ड। उससे अच्छा कोई फर्टिलाइजर नहीं वाला है सर। ये हमारे गाइडलाइन प्रिंसिपल वो भी तब जब वो चारा खाएंगे तब। हाँ, चारा खाएंगे तो नहीं, वो तो है। उसके सारा गाय का दूध ही खराब आ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए फॉरेस्ट और सब आपका एरिया, पैच वाला एरिया हम लोग, और आपके तहसील को आर्मी डिक्लेयर करना हम चाहते हैं, उसमें आपके असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और ये प्रोटोकॉल जो बताना चाहता हूँ आगे सर, दीज आर दी एक्चुअली हमारे जो प्रीवियस इंडिया के क्या है प्लेस होना है, सब कुछ उनको अंदर से बनना है, जब तक कि वो खुद अपने ओर से वो ना लें कि एक प्रकार की जो संकल्प लेना होता है, नहीं तो करना कुछ, कहना कुछ नहीं होगा। तो वो सब उसका उनका हम लोग लेते हैं। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है पूरा। तो ये सर हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, सर छत्तीसगढ़ इज द गवर्नमेंट जो सबसे पहले जिसने गोबर खरीदना किया। महाराष्ट्र में सर जगह आपको महाराष्ट्र के ना एक तहसील में ऐसा करना चाहिए सर। वो उनके लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उनके जो कलेक्टर ने, उनके कमिश्नर ने और उनके मिनिस्टर ने भी। तो सर हमने ये वहाँ जाके लार्ज एरिया करीब लगभग उनका जो है, ये देख लीजिए, उनका एक दंतेवाड़ा का 50,279.9 हेक्टर एक स्ट्रोक में कर दिया। ऐसा हम आपकी तहसील को करना चाहते हैं। तो वही परवेश जी से बात हुई। लेकिन अगर किसान तैयार नहीं हुआ तो वो तो अपने को तैयार करना पड़ेगा, उनको बताना इम्पोर्टेंस क्या है उसका बताना। जो लॉस हो रहा है उसका लॉस तो बात हो गई, डेवलपर लॉस तो होगा ही नहीं है। पहले मुर्गी चलता है। देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने उस दिन क्या बोला, 2 लाख करोड़ की सब्सिडी है, बंद करना, किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे देना। बस 26,000 एक वाले किसान को मिलेंगे, वो ऐसे ही लाल हो जाता। तो उन्होंने किया सर, हम लोग गए, पूरा जंगल है, यहाँ साइकिल तक नहीं जाती, वो एरिया था नक्सल एरिया, दंतेवाड़ा, वो करके आए। ये उनके CM साहब जो है अभी वो उन्होंने सब सर्टिफाइड बांटे। हम लोग इनकी स्कीम है CSA करके एक RC है। ये सब क्या है, इसमें एक छोटी सी हिस्ट्री चाहिए वहाँ पर फार्मर्स की, वहाँ पर उस एरिया में केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं हुआ है, नहीं करेंगे फ्यूचर में। वो वहाँ की जो, जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टर वहाँ का लिख के देगा, तब ये पोर्टल में एक स्कीम है जिसमें हम पूरे एरिया को लार्ज एरिया में अंतर्गत सर्टिफाई करा सकते हैं। आपकी इनिशिएटिव के बिना होगा नहीं ये, क्योंकि उसको हमें जैसे पवन चामलिंग ने सिक्किम को करा दिया। नहीं क्या हो गया, आज अपना थोड़ा सा बहुत गड़बड़ में हो गया था।
इसके पहले भी ऐसा हुआ था। मेरे को एक्चुअली एक्सपेक्ट था कि मैं पूरी एग्रीकल्चर की टीम लेके आपके साथ बैठ, सर तो वो मैं जल्दी कर देता हूँ आपको। तो एक बार जब आप कहेंगे और मैं जब करूंगा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हो रही है तब तो उसका फायदा आएगा। ठीक। पूरी मीटिंग आगे? टाइम का भी चाहिए। क्या हम लोग तो सर टेक्निकल लोग हैं मोस्टली। आपका बजट क्या रहता है? ये छोटा ही बजट है हमारा। ये जो नेट बजट जो है 2640, ये जो है उसका आउटपुट है जो LAC का इंक्रीज फार्मर इनकम होती है थ्रू लोअर इनपुट कास्ट। और इसमें जो है सर सबसे बड़ी बात ये होती है जैसे जो कुछ भी है, इवन आपके यहाँ कोई मिल्क है या कुछ इंटायर कैन बी कन्वर्टेड, उसमें मतलब सर्टिफाइड हो जाता है पूरा एरिया। जैसे अंडमान निकोबार का हमने अभी करवाया था नार्को वेरी, वहाँ तो पूरा, वहाँ तो कुछ जाता ही नहीं है क्योंकि फ्लाइट ही चल रहा है, उसमें कोई केमिकल ले जा नहीं सकता, तो उसका बेनिफिट हमको ऐसे एरिया का मिल गया। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि अपना कुछ एरिया क्योंकि रामटेक इज रिलेटेड टू योर कंस्टिट्यूएंसी आल्सो एज वेल, भगवान राम से जुड़ी हुई चलता है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग केमिकल क्यों खाएं, क्यों पेस्टिसाइड खाएं, और अब कैंसर इंस्टीट्यूट में जाने की जगह ना जाना पड़े। सर आज मैं उस दिन में बोलना चाह रहा था कि आज की डेट में फैमिली फार्मर की ज्यादा जरूरत है बजाय फैमिली डॉक्टर की। दिस इज माय रिक्वेस्ट। अगर फैमिली डॉक्टर की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। सुंदर पॉइंट बोला सर ने। सर ये छोटी सी हमने कविता बनाई है जिसमें पूरा जैविक खेती का सार है। आपको याद है देसी स्वाद, जब आप बचपन में छोटे होंगे, देसी बीज से देसी खाद, अब खाने में डर लगता है, हर चीज में जहर लगता है, जहर घुल रहा है नभ जल थल में, जहर अन्न सब्जी फल में, सोचो क्या खाएं और क्या ना खाएं, रसायनों से और पेस्टिसाइडों से जब बनाएं और जैविक ही बोएं जैविक खाएं, जीवन को स्वस्थ एवं सुखमय बनाएं। और आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सर ये आप देखो, ये डेवलप भारत संगठन भी देखा होगा आपने, ये क्या कह रही हैं आपको, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर इन ट्रबल। और ये ऐसी निरीह प्राणी है हमारे जिनको हमें कुछ करना है। दिस इज व्हाट इज माय सबमिशन। और LAC में अगर आपका साथ होगा तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपने क्या LAC है क्या आपकी? LAC मतलब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, वो आपके एरिया को, जैसा पद्मेश जी की इच्छा थी कि उन्होंने मुझे कहा तो अब अपन आते मुद्दे पे। सर अब बताइए कि अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपने को करना है पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, पब्लिक, पूरा माहौल, और अडॉप्ट फार्मर, फैमिली फार्मर, वो सब अपन कर लेंगे, बराबर है। क्योंकि नागपुर के सारे लोग को लगता है कि मेरे को ऑर्गेनिक खाना चाहिए, लेकिन पद्मनी गुप्ता जी खेत में जाके हल नहीं चलाएंगे। हाँ सही बात। मेरा क्या बोलना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि डेवलप भारत में सबका विश्वास है, क्योंकि मैं समझ गया ना, समझ NGO है। ऐसा था, वो जो सेंटर है ना, आज रामदेव बाबा पे विश्वास होता था नहीं रही, लेकिन डेवलपर के सेंटर पे विश्वास होता है। और एक दूसरा है कि वो NGO है, उसका किसी का व्यक्तिगत कोई लाभ हानि नहीं है। कम से कम उतने, जैसे सर हमने उधर उड़ीसा में हम जब थे पोस्टेड, तो हमने जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो भोग लगता है वो केमिकल वाला नहीं लगना चाहिए। तो आई रिक्वेस्टेड द कलेक्टर ऑफ दैट एरिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिकली ग्रोन सारा कुछ वहाँ जाएगा, उसी का लड्डू बने, उसी का सब दाल चावल उसी का मिलेगा। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली माय सबमिशन फॉर रामटेक एरिया आल्सो। मेरा कहना था कि आपकी SOP क्या है, आपको अगर करना है तो आपके पावर्स क्या है, आपके पास स्कीम क्या है, और आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? सर हमारी जो भारत सरकार की, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, वी गो एज पर दी स्कीम्स। जैसे PKY इज द वन ऑफ द स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके आप स्कीम दो ना मुझे पूरा। हाँ स्कीम है, अब सर नेट में भी है, आपको पूरा हार्ड कॉपी है आपके पास? हार्ड कॉपी प्रवीण, मुझे तुरंत हार्ड कॉपी दो, है ना। फिर उस स्कीम के अंतर्गत PGS इंडिया सर्टिफिकेशन होता है सर, वो फार्मर जो उनके पास फंड भी दिया गया स्कीम से कि इतना आप सर्टिफाई करा सकते हो, और उसको एक सैंपल की टेस्टिंग का पैसा भी दिया है उसमें स्कीम में। अपन उनको किसान को कुछ इंसेंटिव देते हैं जो देते हैं, क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, सीड के लिए पैसा देते हैं, उनके अकाउंट में DBT होता है सर। कितना पैसा देते हैं? वही तो स्कीम पूछ रहा हूं आप। सर्टिफिकेशन के लिए एक्सक्लूसिवली सर 3 साल के लिए 5,000 रुपये देते हैं सर, एक्सक्लूसिवली फॉर सर्टिफिकेशन, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंदर। ये जो LAC बोल रहे हैं ना, एक किसान के लिए गांव में तो 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन चार्जेस 5,000 रुपीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया। इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया। मुझे स्कीम बनाना पड़ेगा। यस सर। तो एक तो वो है सर, दूसरा क्या है कि MOBCD NERO नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो स्कीम मैंने फ्रेम की थी जब मैं दिल्ली में था। ठीक। और उसमें सीधा इवन जो है आउटलेट खोलने के लिए पैसा है उसमें, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। आउटलेट को पैसा दिया वो सर स्कीम में लाना पड़ेगा, वो माल तो पैदा होना पहले सीधा
आप क्या बोल रहे हो, पाइपलाइन पहले खोद रहे हो, डैम बाद में बनाओगे, कैसा होगा? हाँ? थैंक यू। और मेरा नाम सुंदरेश्वर है, डॉक्टर सुंदरेश्वर है। मैं एक्चुअली यूएस में रहता हूँ। वी आर एसोसिएटेड विद द कंपनी कॉल्ड पृथ्वी पोषण। एंड सो सर के साथ हमारा काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो ये एक सो आपने जो जो पॉइंट्स रेज किए थे आज कि इंसेंटिवाइज कैसे करें फार्मर्स को, स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किया था जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में जैसे क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस है, अर्बन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, कि ओवरऑल फूड सिक्योरिटी करने के लिए करना। तो हम चाहते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डेवलप हों, मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स बने फार्मर्स के लिए ताकि एडॉप्शन बढ़े, और हम नई टेक्नोलॉजीज प्रमोट करें। अभी सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो एग्रीकल्चर सॉइल है उसमें कार्बन बहुत डिप्लीट हो चुका है, और कार्बन इज द थिंग दैट एक्चुअली नरिशेस द सॉइल। कार्बन खत्म हो गया तो इट एसेंशियली द सॉइल डाइज। तो 4% होना चाहिए, आजकल हमारे पूरे उसमें 0.05 0.03% है। तो उसको लाने के लिए हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे बायोचार बेस्ड अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से सॉइल रिज्यूनेट होगा, बायोडाइवर्सिटी एनहांस होगी, फार्मर इनकम बढ़ेगा। तो कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस थे यहाँ पे। रुकिए, ठीक। तो इसके ऊपर एक दो पॉइंट हम थोड़ा एम्फसाइज करना चाहते थे कि ये जो नेशनल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन का है, उसको हमने प्रपोज किया था कि एक क्वाज़ी प्राइवेट के लिए बोल दीजिए। और जो आपने कहा था फार्मर को इंसेंटिवाइज कैसे करें, उनका रिस्क कैसे रिड्यूस करें, तो उसको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अंडर फसल बीमा प्रोग्राम में के अंडर, उसमें बाकी पेस्ट वगैरह के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन वो मेरे दिमाग में आप जितना बोल रहे हैं मेरा चीज और चल रही है। हाँ सही। उस पर क्या करना है? तो उसमें हम उसको एनहांस कर सकते हैं। उसके मान लीजिए 3 साल तक अगर हम उनको कह दें उनका प्रीमियम कवर्ड है, अगर वो ट्रांजिशन के लिए जो फर्स्ट रिस्क रहता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने मैं देखिए 1 रुपए की पीपी स्कीम मैंने बंद कराया, और मैंने उसका सबसे लीड लेके बोला कि हम सरकार पीक बीमा नहीं चलाएंगे, और हमने 5,000 करोड़ रुपए एश्योरेंस मोड में दिए। हाँ सर। अभी महाराष्ट्र में, और 1 रुपए की पीपी बीमा बंद किए। बोल्डली मैंने बोला कि नहीं देना है। अगर अभी हम लोग स्कीम चालू करेंगे पीक बीमा तो उसी को देंगे 1 रुपए वाला जो ऑर्गेनिक करेंगे। हाँ बस वही एक इंसेंटिव था कि उनका रिस्क क्या है। और जब हम ये करेंगे तभी हम लोग उसको बोल पाएंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज इंसेक्टिसाइड। करेक्ट। बट सर उसमें 3 चीज आ जाती है। आप बोल रहे थे ना, आपको वॉइस क्या बोलने का। हाँ सर, उसमें 3 चीज। जब तक आप उसको एग्रीमेंट में नहीं जाओगे, हाँ, तब तक आप बन नहीं सकते। सही है सर। तो उसमें एक और बात आ जाती है सर कि ये हमने प्रपोज किया था कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एक मिशन जैसा एक प्राइवेट बॉडी अगर बने, जो गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेस हैं वो तो लेवरेज कर सके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन विल बी लाइक अ प्राइवेट सेक्टर, ताकि जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, ब्यूरोक्रेटिक इससे बचे ना, और कोई अडेप्टेशन अगर कोई इनोवेशन आया उसको भी लेके वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम भी है। जैसे हम फार्मर्स के लिए एक तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर क्या बने। पीके वीवा एनएफ जैविक खेती मिशन, इसके सबके गाइडलाइंस और वो दीजिए मुझे। मैं क्या होगा जब मैं उसको पढ़ूंगा ना फुर्सत से, तो मैं फिर से आपसे बात करता हूँ। सर बेसिक चीज हम इसी तरह से देखते हैं कि अगर फार्मर को इंसेंटिवाइज करना है तो उनको फर्स्ट एजुकेशन हो गया, सेकंड उसका रहता है कि उसका रिस्क कैसे रिड्यूस करें, उसको इंसेंटिवाइज कैसे करें। तो इंसेंटिवाइज में आपने जैसे बताया कि पूरा अगर इंश्योरेंस हम कर लें तो उनका रिस्क खत्म हो जाता है। सो दे आर मोर विलिंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। धीरे धीरे होगा। हाँ सर। हम लोग ये बोलेंगे हम परचेस करते समय भी ऑर्गेनिक ही परचेस करेंगे। हाँ सर। तो उसमें एक और बात हो जाती है सर कि इसमें जो बायो फर्टिलाइजर उसकी सप्लाई चेन बहुत रिलायबल और स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर सप्लाई चेन आज हमने 2 साल तक उनको प्रोवाइड किया और तीसरे साल उनको नहीं मिली तो वो लोग तो रिवर्ट कर जाएंगे। तो वो जो सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या सॉल्यूशंस रह सकते। तो ये एनओएम का एक मैंने स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया था कि उसकी की लीडरशिप कैसे हो सकती है, चेयरपर्सन होंगे, सीईओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट की जगह तालुका लिख दीजिए। हाँ सर। तो इसका जस्ट नोशनल बजट था कि महाराष्ट्र से अगर हम पायलट करें ऐसा कुछ प्रोग्राम तो फिर वो नेशनल पॉलिसी तक जा सकती है। जब तक आपका परचेस की गारंटी नहीं रहेंगी तब तक कोई आदमी कोई बनेगा नहीं सर। परचेस की गारंटी भी चाहिए, ट्रेसेबिलिटी भी चाहिए, ताकि बायर को भी कॉन्फिडेंस आए कि वो जो खरीद रहे हैं वो परचेस की गारंटी रहेगी। सब कुछ रहने के बाद भी परचेस की गारंटी चाहिए। सही बात है।
सही बात, नहीं तो वो उसके साथ में जाएगा मिक्स होकर ऑर्गेनिक के साथ में नॉन ऑर्गेनिक। सही है सर। तो वेस्ट मैनेजमेंट वही होता है, ऑर्गेनिक का नाम नहीं लेंगे तो। हाँ। और इसकी फंडिंग वी थॉट इट कैन कम फ्रॉम क्लाइमेट एलोकेशन होंगे, तो इसकी फंड, और ये ऐसा है कि हमारा ये थिंकिंग था, ये जो क्वाज़ी बॉडी होगी उसके जो भी स्ट्रक्चर हैं वो इनिशियली हमने कुछ ऐसे नोशनल सैलरी और स्ट्रक्चर्स के साथ मैंने प्रेजेंट किया है ये। और रेवेन्यू पोटेंशियल हमारा ये था सर, जो हम सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं वो सप्लाई चेन इस नेटवर्क के थ्रू फार्मर्स को मिले। सो अगर बल्क में हम खरीदते हैं बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड, गवर्नमेंट उसको डिस्काउंट पे खरीद सकती है, लार्ज वॉल्यूम डिस्काउंट। और बीच में जो या पहले बताइए रेवेन्यू पोटेंशियल बताइए। हाँ, तो रेवेन्यू पोटेंशियल का ही मैं बता रहा हूँ। ये जो क्वाज़ी प्राइवेट बॉडी होगी सर, उसमें ये बेनिफिट होगा कि जो बल्क में बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स खरीद रही है, बिकॉज वॉल्यूम डिस्काउंट लेगी गवर्नमेंट खरीदते समय, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़ा मार्कअप करेगी, बिकॉज उनके पास फार्मर नेटवर्क है, उनके पास कंट्रोल है, वो उसमें 8 से 10% मार्कअप करेंगे। और वो मार्कअप करके फिर भी फार्मर को अगर पहुंचाते हैं वो, फिर भी वो जो सस्ता पड़ेगा। आज मैं कल मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 400 फार्मर से मिलके आया हूँ जो कॉटन फार्मिंग करते हैं। वो बोलते हैं सर हमारा महीने का पर एकड़ हमारा जो खर्चा है साल का, वो 15,000 से 20,000 रुपया मेरा मिनिमम पड़ता है पर एकड़ फॉर फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। तो अगर इस प्रोसेस से हम फार्मर को मान लीजिए 12,000 पर एकड़ में भी देते हैं, तो उसका तो इमीडिएटली 1,000 का क्या देते 12,000 पर एकड़? वो बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर वो जो सर्टिफाई होके आएगा गवर्नमेंट लैब से, वॉल्यूम उसको सप्लाई करनी है, सप्लाई चेन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी तो इतना अच्छा, मतलब आपका कहना है कि उसको रासायनिक खत की जगह बायो फर्टिलाइजर सब्सिडी करें, तो रासायनिक खत का तो अलग है, उसमें तो हमें मिक्स होना नहीं है। उससे ज्यादा बेटर है कि रासायनिक खत की सब्सिडी आता तो बायो फर्टिलाइजर की सब्सिडी चालू कर दो। हाँ, वही बोल रहा हूँ सर। हाँ, वही है। और उसको इस लेवल पे करें कि जो अभी वो खर्चा कर रहे हैं उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे, उससे सब्सटेंशियली रिड्यूस हो, ताकि वो ऑटोमेटिकली एक अनरियलाइज्ड इनकम हो। तो उसी के ऊपर है कि ये एनओएफ को जो मिलेगा उससे पैसा रेवेन्यू से, वो उसके बजट में जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो क्षेत्र बढ़ता जाएगा, और ये जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्वाज़ी प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट, अपने पास में ऑर्गेनिक मटेरियल खरीदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मतलब आप भी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, हॉर्टिकल्चर की आपको अथॉरिटी बनाने के बाद भी लोगों को ये लगने लगता है कि साला ये लोग भी पैसे खा के बोगस माल हमको बेच रहे करके। करेक्ट, इसीलिए वो रिलायबल इसीलिए मैंने कहा कि एक क्वाज़ी प्राइवेट होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी एश्योरेंस होना चाहिए। एकदम प्राइवेट एंटिटी रहता है, हमेशा डाउट रहता है उसमें, क्वालिटी क्या है, कितना पैसा बना रहे हैं, असली माल है कि नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी रहेगा सर। और तो ये उसका जनरल फेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन का, कि क्या क्या कर सकते हैं, लीगल सेटअप और पायलट्स होंगे, एक्सपैंड करेंगे 10 मिलियन हेक्टेयर में से 2 to 3 years में, और नेशनल पॉलिसी में एम्बेड हो। और ये जनरली पूरे प्रोग्राम का, बिकॉज उसमें और भी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, इंसेंटिव रहेगा, एडमिशन रहेगा, ये पूरा 5 साल का एक जनरल बजट दिया है कि 2700 करोड़ है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर का जो रेवेन्यू आ रहा है, ये जो बजट है, हाँ, ये बजट के बारे में आपका क्या कहना है? ये बजट कहाँ से आएगा? सो ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जा रही है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सब्सिडी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सर उसमें तो भी एलोकेशन स्टेट की तरफ से आते ही होंगे ना अंदर वेरियस प्रोग्राम। सर इसमें क्या है ना, ये जो भी बनेगा प्रोग्राम सर, इसके लिए बताओ क्या? हाँ, इसके लिए टोटली स्टेट की स्कीम करना पड़ेगा। हाँ, आगे सो उसका क्या है कि ऑलरेडी लॉट ऑफ पैरेलल एफर्ट्स हैं स्टेट प्रोग्राम्स में, और उसके थ्रू ले सकते हैं। यही है एंटिसिपेटेड आउटकम। हमारा अल्टीमेट गोल है कि फार्मर को उसका ड्यू मिले और उसका रिस्क कम हो। बस यही लास्ट स्लाइड है, ताकि ओवरऑल फूड सिक्योरिटी हमारा बने। तो हम ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहते थे। हम लोग की चर्चा काफी होती रहती है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ निकलना चाहिए। सर एक और सबमिशन था, जैसे यहाँ अभी एक हॉस्पिटल से आता है, इतने बहुत सारे हॉस्पिटल हैं हमारी इवन हाथपुर में, मेरे पास इतने फोन आते हैं इवन बहुत सारे कैंटीन से, तो सर हमें आर्टिकलिंग दिलाइएगा। तो हम चाहते हैं रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं अगर हमारे आपके फार्मर का ये नहीं, लेकिन आपके पास में परचेस की अथॉरिटी है क्या? आपके पास में व्यवस्था है क्या? ना उसके लिए फंडिंग है क्या? करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग देती है। करेक्ट, सबसे पहले तो सेना में करना चाहिए। आप सर्टिफाई करो, आप वही बोल बनो, और आप गारंटी लो, आप फार्मर से खरीदो। देखिए मैं आपको बताता हूँ होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको पास प्रॉब्लम बताओ क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी दुकान में माल नहीं बेच सकते, आपका काउंटर ही सेपरेट होना। वही बोल रहा हूँ, वही पूरे सेपरेट प्लेटफॉर्म, सेपरेट काउंटर फॉर ऑर्गेनिक के लिए। मध्य प्रदेश में ऐसा किया था कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक की मंडी में अलग अलग शॉप करवाई। तो ऐसे हम महाराष्ट्र में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक जो बना रहे हैं सभी बना रहे हैं फार्मर मार्केट। नहीं, वो क्या हो गया, अभी हम लोग उम्मेद मॉल बना रहे सब जगह, महिला बचत गट के लिए वगैरह, अभी 10 जिले में 10 बना रहे हैं। तो उसमें ये कंडीशन डालेंगे कि हम ऑर्गेनिक ही आपको देना पड़ेगा और वो शुड बी सर्टिफाइड बाय एजेंसी। स्टेट गवर्नमेंट के पास सर्टिफाइड एजेंसी है क्या भाई? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की है सर। अभी कौन सी? आपकी मौका है, महाराष्ट्र ने सर्टिफिकेशन एजेंसी को दिया है, हम लोगों ने आरसी बनाया है। नहीं, आप नहीं, उनके पास खुद की व्यवस्था है क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? हाँ, वो ट्रेनिंग लेते हैं हम लोगों आपके पास ही आते हैं, ट्रेनिंग लेके हमसे और फिर वो करते हैं। जैसे मौका है आपकी, वो खुद सर्टिफाइड देते हैं। हाँ हाँ, उनके डायरेक्टर को उनको वो मैं लेता हूँ। सब कुछ व्हाट्सएप करा देंगे सर। और दूसरा हम एक रिक्वेस्ट और करेंगे, ये हम प्रोग्राम आपका कबूल नहीं कर रहे हैं, इतने जल्दी में आप आए, आपको और बुलाएंगे हम। नहीं, मैं आऊंगा ही, जरूरी है। आऊंगा ही, लेकिन मैं पूरा ब्रीफ होके आऊंगा, साथ में पूरी टीम लेके आऊंगा। यस प्लीज सर एक ही रिक्वेस्ट था सर, यहाँ पे जैसे हमारा सबसे पहला जो फोकस है फार्मर को जो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो सॉइल कार्बन इम्प्रूव करके ही मिलेगी। और सॉइल कार्बन इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी तरीके, अभी तो बायोचार निकल के आ रहा है, लेकिन उसमें अभी जो क्लाइमेट चेंज का वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, कार्बन क्रेडिट्स बन रहा है, वो एक इंसेंटिव पाथवे है। उसमें आप पॉलिसी बनाते समय बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम उसको मैंडेट ना करें। अगर मैंडेट करेंगे तो उसका वॉलंटरी एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ से आपको 3-4 लोग भेजता हूँ। एक तो मेरे एसओ को भेजता हूँ, मेरे तालुका कृषि अधिकारी को भेजता हूँ, और 1-2 लोग को 5 लोग को भेजता हूँ आपके पास। 2-3 घंटे आपके साथ बैठेंगे, इसका प्लान बनाएंगे। तो जब दोबारा मैं आपके पास आऊँगा तब तक प्लान पूरा रेडी कर लेंगे। सर हमसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और एक मदद होगा। बेसिकली 20-25 साल से यूएस में सेटल्ड है, बट कुछ गोमाता के लिए कुछ करना है करके ही केम बैक फ्रॉम यूएस। फैमिली पूरी यूएस में ही है, ये साल के 6 महीना यहाँ पे इंडिया में गुजारते हैं। अभी इनका लेटेस्ट का प्रोविजन ऐसा है कि जितने भी गौशाला है तो वो गौशाला में जो शेड निकलता है, जो ये निकलता है, उसको कन्वर्ट करना है इसको बायोचार में, और बायोचार में कन्वर्ट करके वो गौशाला को एक एडिशनल इनकम कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी वो देना चाहते हैं। उसका प्लान दो ना मुझे। आपको वो दे दूंगा सर। हाँ, ये फाइलें क्या आप कह रहे हैं? इसकी क्रेडिट भी सर परमेश जी को जाती है। परमेश जी ने हम लोगों को कनेक्ट करा दिया, 2-3 बार ये आए तो हमने कहा इस पे करना है, आपने कहा था तो मैंने कहा कि इसको इमीडिएटली तैयार करो। तो भी हम लोग 3 दिन बैठे हैं इसके लिए अलग से सर। ये हमें डॉक्टर साहब ये अटल अल्टीमेटली क्या है कि फार्मर को और गौशाला दोनों में कमाना चाहिए, और अपने जो ऑर्गेनिक तरीके से, यही अपना उद्देश्य है। सर एक और मेरी रिक्वेस्ट थी सर, ये जो अपना जो महुआ का हॉस्पिटल्स और अपना अर्जुन का हमने तो सर ये इसमें अपने डॉक्टर को खिलाना शुरू किया है ओपीडी बिफोर गोइंग, जिसको नीड दी ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसा सिस्टम हमें लाना है। जानवर वाले नहीं है, तो हम लोग डब्बे से जो हनी बनाते हैं वो है। तो आप बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये सर बहुत अभ्यास है। आशीष जी का एक आदत है, गौशाला का सर हमारा ये कर सकते हैं कि अपने महाराष्ट्र की जितनी ये है ना कैंटीन स्टेट गवर्नमेंट की, ये अच्छी चीज नहीं, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की कैंटीन है, उन सबको एक्सपोर्ट करते हैं डिक्लेयर नहीं करते, वो सब आएगा वो चीट करके वो देखिए उसको जरा बहुत सोच समझ के करना, कुछ भी करने जाऊंगा तो तो सर ये राजस्थान गवर्नमेंट का बेलजोड़ी होती है, उनको 30,000 रुपये देते हैं। ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, को भेजा हूँ, उन्होंने उसको भी अप्रिशिएट किया, और वो वर्मी कंपोज उन्होंने गवर्नमेंट क्या देते हैं, क्या देते हैं? 30,000 rupees annually Rajasthan government is providing all the farmers who are having the bulls जो बैल जोड़ी होती है। क्यों देते हो? क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं तो वो सड़कों पर घूम रहे हैं उनके यहाँ पर, वो फिर वो जहाँ ट्रैक्टर नहीं चलता सर वहाँ ये स्कीम के जीआर इसकी कॉपी दोगे? सर मंगाना पड़ेगी, ले लेंगे। मंगा लीजिए। राजस्थान गवर्नमेंट की है ना, भेजता हूँ। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है। अच्छा, उसमें तो यूपी गवर्नमेंट में तो जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग है सारा गोबर पेंट ही लगा हुआ, और फरमान भी गोबर का पेंट क्यों लगाना? गोबर को पेंट में क्यों वेस्ट करना? अभी हमारा मुझे एक बार बताइए, गोबर का पेंट क्यों बनाना? तो हमारा जो प्रोसेस है सर, गोबर तो एक अकेला हो गया प्रोडक्ट, हम उससे गोबर का जब बायोचार बनाते हैं, नहीं, गोबर का रासायनिक खत का उसको ऑर्गेनिक इसके यूज करने के बाद उसको वापस रीयूज होता है? क्यों नहीं होता? पेंट बनाना है ना, गोबर का नुकसान करना है ना? हाँ, आई एग्री। बिल्कुल नुकसान नहीं है, रेडिएशन बचाता है।
अरे लेकिन आपने ऑर्गेनिक के लिए फिर आगे जब आप एक्सपोर्ट को अलाउ कर रहे हो और यहाँ वो तो मैं लिख दिया, मैं लिखा ना मैंने। मुझे डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा कि महाराष्ट्र में ऐसे गोबर एक्सपोर्ट होता है करके हिंदुस्तान से? और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करिए। सर हमारा क्या है ना कि गोबर का ही वैल्यू एडिशन करेंगे। गोबर से अगर हम बायोचार बनाते हैं उस प्रोसेस में हमें बायो पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं और उससे जो टार जो निकलता है उसको हम पेट में यूज कर सकते हैं। सो वो जो बायोचार बना है उसको बाकी के और गोबर से मिला के जीवामृत जैसा बना के उसको और एनहेंस करके फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो जो बायोचार रहता है, जैसे गोबर हमें हर सीजन में डालना पड़ता है, वो उड़ जाता है। अच्छा एक काम करते हैं, अपन अभी नेक्स्ट मीटिंग की डेट फाइनल करते हैं। सर उसको माइक्रोवेल इंडेक्स कर देंगे सर हम। वो जो 1 तारीख को संडे है ना, तो 2 तारीख को अपन बैठते हैं। कम से कम एक एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हमारे ऑफिस में आया सर, इससे बड़ी बात जो कैब पर। अच्छा सर के लिए आपको मेरे लिए तो दूसरा एक टेंशन है मेरे को। मेरा कहना है कि चारा भी ऑर्गेनिक होना मेरे को, क्योंकि चारा ऑर्गेनिक नहीं रहा तो गाय साला सल्फेट वाला चावल खाएंगे, घास खाएंगे। हाँ स्टेट गवर्नमेंट की हाँ जितनी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की कैंटीन है सबको ऑर्गेनिक क्या? पुलिस डिपार्टमेंट ये सब कर नहीं डिक्लेयर नहीं करें, उनको सप्लाई करवाना है। वो जैसे सर नहीं वो देखिए उसको जरा बहुत सोच समझ के करना पड़ता। कुछ भी करने जाऊंगा तो उसका गलत हो जाता है। गलत नहीं करना है सर। मैं ये बता रहा हूँ जैसे यहाँ एनडीआरएफ है, ऐसा एग्रीकल्चर नहीं होता। वो क्या होता है, वो बात की बात है। पहले तो लोगों में अवेयरनेस करो कि तुम जहर मत खाओ कर, डॉक्टर को मत बुलाओ, डॉक्टर को इनविटेशन मत दो करके। मुझे पूरा पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करूंगा 2 तारीख। ठीक है सर।